we did infrastructure as a service. So we are actually covering cloud computing services. So there are three pieces for that, right? Infrastructure, platform, and software as a service. So today we are moving towards part 9, which is platform as a service. So this is the reference model you should keep in mind whenever you are talking about platform as a service. Now last year they must have asked you very in a summary way what are the different services, and you said 3 services and you must have added some description. But this year if they ask you something, the same question, it cannot be that short. It has to be little bit more explanation. So you need to explain all these components. So in this you can see there are 3 layers, right? One is the web-based interface. What could this be? Web browser application. So using all these services like web services, portal, REST API, they've created some application to configure what? Configure the platform. So you require websites for everything to configure, but the question is for what you require. In previous case we had infrastructure as a service and we had a website for that for the same to configure. In that case when we configure, we are configuring the user level middleware and the core level middleware we are configuring. And core level middleware, what all comes, like virtual machines, hypervisor, so all those elasticity, all those things comes in that. So that is what is getting configured. You just got the battery, I think. Cell charger also we want. अच्छा ये है, ठीक है, ये कभी जरूरत पड़ गया तो. Thank you, Manoj. So you see programming API libraries. So you can write an application over this API and call this API. This API will call the middleware. So that is the advantage of these APIs where you can programmatically. Sorry. Node also, okay. Yeah, API is nothing but kind of a packaged functions which the client applications can call, whoever wants to call. So in this case we are interfacing with it's a application program interface. Only the application will change to which you are interfacing. So in this API is an interface to pass core middleware. So you see there are 3 components. One is the physical infrastructure is right here, and all this within the pass core middleware you've got all these components which are running. And this is the IaaS providers. What is this IaaS providers? Infrastructure as a service. Yeah, but what is different between this and this? Both are infrastructure. So these are just physical. So this is physical. The physical infrastructure provider, that would be, they'll give their room, the hard disk and everything. No. This is owned by the cloud provider. This may be third party providers. So sometimes you have to go to the third party for infrastructure, right? The application you mean to say? No. The front end? No, the actual hardware, not necessary you are providing it. This would like suppose AWS will have the physical infrastructure, alright? And IaaS would be? That's what I'm saying. IaaS providers means sometimes if you are going with AWS, they'll give you the hardware, but Microsoft does not. If you go to Microsoft depends on third party to get the hardware. So that is yesterday we had a list of companies, right, which have the infrastructure, and then we had a second list of company which has the management software, but they don't have the infrastructure. IaaS. So these two, they are distinguishing here between what is owned by the cloud provider versus what is third party. You can go to either one of them. When you are designing a solution, you may be having the pass core middleware. You will say, I will provide the platform, but I will not provide the hardware. In that case, you go to the third party provider.
So platform as a service reference model. Platform as a service solution provider development and deployment platform for running applications. So it is for developing applications, like what? Like developing a Java application, Python application, a web service, anything, any platform, .NET platform. So PaaS is a middleware on top of which applications are built. Means you can create applications using this PaaS core. PaaS. Application management is the core functionality of the middleware. In the infrastructure, what was the core functionality? Very good. But infrastructure management. This is application management. So these two words are mapping to, one is mapping to infrastructure, other one is mapping to platform. So whenever you say platform, you are talking about application management. PaaS implementations provide applications with runtime environments and do not expose any service for managing the underlying infrastructure. Okay, so just remember this, PaaS is not for infrastructure but it is only for platforms. Okay. Okay, next. So PaaS automates the process of deploying applications to the infrastructure, configuring application components, provisioning and configuring supporting technologies such as load balancers, databases, manages system change based on policies set by the user. So basically they have created an automated software where you can select what I want to be installed. I want Java installed, so they'll create you a runtime environment. But are they going to give you one like separate machine? No, it may be a virtual machine. On the top of that they will create a separate runtime environment for you. So your runtime environment should not be used by somebody else. So all this has to be automated. So I may have Ashish coming in and I may have Manoj. I need to give them both separate runtime environments. One cannot interfere with the other. So all this customization and automation has to be done by the PaaS software, PaaS core middleware. Developers design their systems in terms of applications and are not concerned with the hardware, operating system or other low-level services. The core middleware is in charge of managing the resources and scaling applications on demand or automatically according to the commitment made with the users. So this is another functionality which PaaS core middleware has to take care. Even if I am giving something to Ashish, a runtime environment, if the load of the application is increasing, I should be able to make it elastic. And elastic in the sense, elastic is equal to scalability. So I should be able to scale it for him. That facility I should be able to do it automatically. Now when you install Java, does everything happen automatically, scaling? When you tried Java last year, did it happen, like, can it scale automatically? There needs to be another software which should enable that scalability, which means they need to run in different processes, but make it look as if you are running your own machine. From a user point of view, the core middleware exposes interfaces that allow programming and deploying applications on the cloud. This can be in the form of web-based interface or in the form of programming APIs and libraries. So usually whatever they are providing, they provide you some kind of an API which you can download and program it locally. The specific development model decided for applications determines the interface exposed to the user. So when you say PaaS, there are 4 characteristics you should come to my mind. RAC, okay, or RAC, whatever way you want to remember. RAAC. One is a runtime framework, A is the abstraction, A for automation, and C for cloud services. So what is runtime framework? A runtime framework represents the software stack of the PaaS model. The runtime framework executes end user code according to the policies set by the user and provider. So can you give me an example of runtime framework? Sir, what is the software stack? Software stack, like yesterday we did LAMP stack, LAMP, Linux plus Apache plus MySQL plus Java. मतलब कुछ भी एप्लीकेशन चलाने के लिए
मतलब एक वेबसाइट को क्रिएट करने का एक वेब सर्वर का जरूरत पड़ेगा, डेटा यूज करने के लिए डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा, तो वो एक स्टैक हो गया, मतलब साथ में देते हैं उन लोग। चाहिए तो आप सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, मतलब एक स्टैक जिसमें सब कुछ चल जाएगा आपका एक ही साथ। रन टाइम फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल लाइक जावा रन टाइम फ्रेमवर्क, .NET फ्रेमवर्क। सो इसके अंदर तुम्हारा जावा एप्लीकेशन रन होता है। जावा एप्लीकेशन डू नॉट रन डायरेक्टली ऑन द मशीन, देयर इज अ framework in between which actually takes your code and executes it on the machine. So that is, when you're building applications, the most basic thing you require is a framework, runtime framework. The operating system does not come with these frameworks. The language specific runtime framework comes with those frameworks. What is the second thing? Abstraction, application management. When you say abstraction, what does, क्या दिमाग में आता है? एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, सेपरेशन। लाइक हमें अगर दो यूजर्स आर ऑन द सेम मशीन, they should not know that they are existing to each other. Kind of an abstraction it is. Virtualization is an abstraction. Yeah, virtualization is a kind of an abstraction from real machine, but actually the real machine is running. So this is also required for your applications, right? When you're having both two people are using a runtime frameworks, you should not feel as if somebody else is using my runtime framework or मेरा processor time जा रहा है इसमें. It should be abstracted. So in case of IaaS solution, the focus is on delivering raw access to virtual or physical infrastructure. In case of PaaS, the focus is on the abstraction of the applications the cloud must support. So you may have Java apps, Python apps, .NET apps. If it is all running on the same machine, because वो एक मशीन पे 4 वर्चुअल मशीन रहेगा, 4 वर्चुअल मशीन may be utilized by 4 people. One person must have using the Java runtime, second one is using Python, third one is using .NET. लेकिन सबका मशीन अलग है एक ही मशीन पे, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अलग अलग यूजर्स का भी। तुम सेम मशीन यूज करते होगे, हाँ आप पाइथन यूज करते हो, लेकिन आप मशीन एक ही यूज कर रहे हो। साहिल भी सेम मशीन यूज कर रहे, लेकिन जावा इंस्टॉल किया उसने, लेकिन उसको तुमने क्या इंस्टॉल किया दिखाई नहीं दे रहा है, और तुम्हारा प्रोग्राम उसके साथ इंटरफियर नहीं हो रहा है। उसको एब्स्ट्रैक्शन रखना पड़ेगा, अलग अलग रखना पड़ेगा। Automation, SLA and QoS. PaaS environments automate the process of deploying applications to the infrastructure, scaling them by provisioning additional resources when needed. This process is performed automatically and according to the SLA made between the customers and the provider. So what is SLA and QoS? हाँ, तो देयर शुड बी सॉल्यूशंस कि ऐसा तुमने प्रॉमिस किया कि 99% तुम्हारा रन टाइम रन होएगा, तो रन होना चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन रहना चाहिए तुम्हारे पास। सो पास एनवायरमेंट्स ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस एंड स्केलिंग देम एज रिक्वायर्ड। तो ऑल द डिप्लॉयमेंट ऑल्सो शुड बी हैपन ऑटोमेटिकली। तुम्हारा सिर्फ प्रोग्राम डाल दो, उधर पाइथन का कोड डाल दो, वो चलना चाहिए वो फिर ऑटोमेटिक। The fourth characteristics of PaaS is cloud services, something like elasticity, scaling, user management, resource management. PaaS offerings provide developers and architects with services and APIs, helping them to simplify the creation and delivery of elastic and highly available cloud applications. तो द मोमेंट एक क्लाउड रहेगा तो इलास्टिक रहना ही चाहिए और अवेलेबल रहना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? अनिल इलास्टिक का मतलब क्या होता है क्लाउड पे? मतलब सर एक
इलास्टिक, मनोज इलास्टिक क्या होता है? रियल वर्ल्ड में इलास्टिक यूज किया है तुमने? जैसा अभी इसने एग्जांपल दिया रबर बैंड का, यूज किया है? इलास्टिक होता है ना वो, उसका इलास्टिक में वो प्रॉपर्टी क्या क्या करता है वो प्रॉपर्टी? हाँ मतलब फ्लेक्सिबल का और थोड़ा एक्सपेंड करो। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? मतलब कितना भी खींचोगे तो बड़ा होएगा, राइट? और वो छोटा भी हो सकता है, बराबर? तो उसी तरह एप्लीकेशन शुड बी इलास्टिक। एप्लीकेशन इलास्टिसिटी का मतलब क्या होएगा? मतलब वो उसका वो कौन सा है, मतलब बहुत सारे यूजर्स अगर वो एप्लीकेशन एक्सेस करते, बराबर है? मतलब उसको फिर आपको क्या हो गया? अभी बोलो एप्लीकेशन इलास्टिसिटी क्या होता है, बोलो आप। नहीं अभी वो सर उसका ज्यादा यूजेस रहेगा ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब कितना भी यूज करो। एप्लीकेशन इलास्टिसिटी क्या होता है? अभी मैं वही बात कर रहा था, उसको समझा रहा था, तो बीच बीच में हंस रहा था। तो नहीं अभी एप्लीकेशन, अभी तेरे पर आ गया। अभी एप्लीकेशन इलास्टिसिटी क्या होता है? अभी इलास्टिक तो समझ में आ गया सबको। अभी इलास्टिक मतलब बड़ा होता है छोटा होता है, तो अगर तू एप्लीकेशन इलास्टिक बोलता है तो क्या हो गया फिर? तो एप्लीकेशन सर, एप्लीकेशन तो बड़ा छोटा होता है। हाँ एप्लीकेशन बड़ा छोटा, हाँ, तो बड़ा छोटा होना चाहिए ना। तो वो कैसे होता है? अभी वो ही पूछ रहा हूँ मैं अभी। तो वो सही है, एप्लीकेशन बड़ा छोटा होना चाहिए, मतलब उसका मतलब क्या हो गया? तो उसका सर स्टोरेज या कुछ प्रोग्रामिंग, मतलब एक एप्लीकेशन अगर एक आदमी यूज करता है और 10 आदमी यूज करता है तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? एप्लीकेशन पे लोड पड़ेगा कि नहीं? तो एक एप्लीकेशन काफी है क्या उसके लिए? नहीं, तो उसका एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। डुप्लीकेट बनाएगा तो फिर वो 10 लोगों को 5-5 बांट सकता है कि तू ये यूज कर, तू ये यूज कर। अभी एक ही प्लेट में सबको खाना नहीं दे सकता है ना, 10,000 लोग रहेंगे तो तू क्या करेगा? अलग अलग प्लेट करेगा ना। हाँ 1000 लोग रहेंगे तो 1000 प्लेट डालेगा ना, और 10 लोग आएंगे तो कितना प्लेट डालेगा? हाँ 10 डालेगा। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, जितना जरूरत है उतना तो मल्टीप्लाई करेगा। नहीं अभी समझा क्या? अभी सब समझा। हाँ एप्लीकेशन जितनी जरूरत रहती है उतने बाहर दे सकते हैं। हाँ पूछा ये भी लाइन पूछा। ये क्लाउड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इलास्टिसिटी और स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या हो गया? स्केलिंग का मतलब पट्टी नहीं, स्केलिंग का मतलब स्केलिंग भी वही मतलब हो गया, वैसे मतलब बड़ा और छोटा। अगर तुम ऑटोमेटिक स्केलिंग बोलते हो तो उसको इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑटोमेटिक स्केलिंग। कि वो ऑटोमेटिक, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तुम एप्लीकेशन डालो वो ऑटोमेटिक स्केलिंग करेगा क्लाउड। उसका मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी। तो अगर मैं बोलता हूँ इलास्टिक लोड बैलेंस है, इलास्टिक एप्लीकेशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक होएगा। आपको ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ एक बार बताना है कि इलास्टिक चाहिए कि इलास्टिक नहीं चाहिए। हाईली अवेलेबल, इसका मतलब क्या हो गया अनिल? हाँ सर, हाईली अवेलेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब क्या हो गया? जरूरत या रहना ऑनलाइन। हाँ रहना, मतलब आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन बोलते हैं ना। आई एम 99% अवेलेबल, उसका मतलब क्या हो गया? 99% वो अवेलेबल है। मैं रहूँगा कुछ भी हो जाए। हाँ तो
आप सॉल्व कैसे करोगे? अभी किसी सेल आया और तो आपके सामने बोल रहा सेल ने आपको बोला इधर खड़ा रहो, आपने सेल को बोला आई विल बी 99% अवेलेबल हियर, तुमको कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? मतलब वो खड़ा है नहीं, मुझे बोल रहा है हाँ, और तुमने बोला आई एम 99% अवेलेबल, तुमने बोला उसको, किसके लिए सर? ये तेरे को पार्टी में जाने का है। जो भी हो तुमने प्रॉमिस किया कि मैं 99% इधर अवेलेबल हो गया। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन क्या आइडिया कुछ यूज कर सकते होगे, कुछ अवेलेबल होने के लिए क्या क्या करोगे? दूसरे को तो खड़ा नहीं कर सकते सर, मैं खुद बोला हूँ 99%। नहीं खड़ा कर सकते हो ना आप। हाँ, उसको कुछ काम है तेरे से, उसको काम से मतलब है, समझ गया फिर सर, किसी को भी काम तू कैसा भी अवेलेबल कर, उसको परवाह नहीं है भाई, मेरा काम है तो इधर खड़ा रहे। समझ गया? हाँ, सो एप्लीकेशंस में अवेलेबल करने के लिए यही आइडिया यूज होता है, ठीक है? तो कि अगर बॉम्बे में मेरा एक कंप्यूटर है और वो उसमें कुछ बुड़ गया, लेकिन मैंने उसको बोला है मैं 99% अवेलेबल रहेगा इंटरनेट पे, तो क्या करेगा फिर? दूसरी तरफ रहेगा ना सर, दिल्ली में। तेरा एक डुप्लीकेट कॉपी दूसरा जगह पे रहना चाहिए कि इधर मैं भूल गया तो मेरा दूसरा चालू हो जाएगा, लेकिन मैं अवेलेबल रहेगा। समझा? समझा सर। इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी, स्केलिंग, स्केलिंग वही वही हो गया। तो ये सब चीज क्लाउड का चीज है। क्लाउड बोलेगा तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली आना चाहिए। क्लाउड इलास्टिक है, स्केलिंग है, अवेलेबल है। डायनेमिक प्रोविजनिंग क्या होता है? नहीं तू है अभी सब नहीं, उसका भी टर्न आ रहा है ना, बाद में आएगा उसका कुछ। ये अभी एक टॉपिक चल रहा है, सब एक ही टॉपिक रिलेटेड। डायनेमिक प्रोविजनिंग क्या है? सर वो प्रोविजन डायनेमिक क्या होता है? डायनामिक है बना। डायनेमिक मतलब अभी डायनेमिक पर्सनालिटी है, मतलब क्या होता है? सुना है क्या वर्ड डायनेमिक? बहुत डायनेमिक है ये, ऐसा सुना है तूने? मतलब ऐसे कंपनी में वो लोग बोलते हैं जॉब चाहिए तो बोलते हैं वी नीड अ डायनेमिक पर्सनालिटी सेल्समैन। सुना है कभी? वो लोग ऐसे नहीं बोलते हम लोग को ऐसे कोई सोया हुआ इंसान चाहिए सेल्समैन आके, डायनेमिक चाहिए हमको, एक्टिव, एडजस्ट होने वाला, फ्लेक्सिबल। हाँ, ये अच्छा वर्ड है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा बात करने में अच्छा रहना चाहिए, सब डायनेमिक, मतलब इम्प्रेस होना चाहिए जैसा वो ये होना चाहिए, मतलब डायनेमिक। तो डायनेमिक प्रोविजन मतलब फ्लेक्सिबल, तूने बोला वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। और फ्लेक्सिबल इज इक्वल टू इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल इज इक्वल टू स्केलिंग, सो दैट इज द सेम मीनिंग। हाँ, सब एक ही है, वर्ड कुछ अलग अलग साउंड हो रहा है, बट तुमको ये सब वर्ड इंग्लिश वर्ड थोड़ा समझेगा तो आप लोग लिख सकोगे। ये वर्ड्स ही मैटर्स करता है आंसर्स में। डायनेमिक प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग का मतलब है टू प्रोवाइड। सो क्लाउड इज अ डायनेमिक प्रोविजनर। तो ये एक ही वर्ड को प्रोविजनिंग, प्रोविजनर, प्रोवाइडिंग सब एक ही है। तो ये क्लियर हो गया क्लाउड सर्विसेज में। दिस सर्विसेज आर की डिफरेंशिएटर्स। की डिफरेंशिएटर मतलब यही चीज क्लाउड को डिफरेंट करता है, यही चीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है ये। क्योंकि क्लाउड क्या है? इलास्टिक है, स्केलिंग है, अवेलेबल है, डायनेमिक प्रोविजनिंग है, लो कॉस्ट है। सो दिस सर्विसेज आर की डिफरेंशिएटर्स अमंग कॉम्पिटिंग पास सॉल्यूशन। एक कंपनी को दूसरा कंपनी यही चीज से डिफरेंशिएट होता है कि किसका सर्विस अच्छा है, किसका इलास्टिसिटी अच्छा है।
नहीं, तीनों प्लेयर्स है ना, बट अमेजोन इज लीडिंग, उनका मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में कितना बड़ा है वो लोग? इंडिया में अभी टेको है उन लोग लीडर्स, अभी माइक्रोसॉफ्ट भी घुस गया ना अंदर। गूगल अभी तक आया नहीं इंडिया में अभी देखा नहीं मैंने उनको। उनका तो सर्च इंजन वैसे भी चल रहा है, पर माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में आए और शायद ये IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए हैंडशेक किया है गवर्नमेंट के साथ। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक बिजनेस, एक पार्टनर बनेगा, मेन पार्टनर। IoT स्मार्ट सिटी बनाने का है तो उसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। IoT बेस्ड सोल्यूशन सुना है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट सिटी IoT बेस्ड होता है ज्यादातर। तो कौन बड़ा है का तुमने पूछा, कौन है ना आगे इंडिया में? सब लोग अपना अपना रास्ता ले रहे हैं। मतलब एक ने IoT ले लिया गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के, AWS ने बिकम लाइक कंपनीज आर टेकिंग, डेवलपर्स आर मोस्टली गोइंग फॉर AWS। मेरे जैसे डेवलपर रहेंगे तो हो सकता है मैं AWS ले लूँ, ज़्यादा चांसेस है। नहीं, गूगल इंटरेस्ट रहेगा तो करेगा। मेरे को पता नहीं, गूगल अभी तक देखा नहीं मैंने ऐसे। आपने सुना है कभी? वो कौन है, उसका नाम क्या है उसका? गूगल का हेड का नाम क्या है? वो कभी देखा है इधर आते हुए? नहीं, अभी रिसेंटली देखा है क्या बिजनेस के लिए? तो आपको ये सब लोगों को फॉलो करना पड़ता है। सुंदर पिचाई, फिर अभी रिसेंटली उसका क्या था वो लोग जो वो देते हैं ना समिट्स एवरी ईयर, दे कम एंड टेल वी आर डूइंग दिस इन द प्रोडक्ट, तो उनका फोकस वो रहता है। आज अभी मेरे को लगता है उन लोग अपना जीमेल में काफी कुछ उन लोग ने किया है ना, तो ये सब उसने उसी के बारे में बात किया था। तो सब लोग अपना अपना कुछ बात करके चले जा रहे हैं। अभी माइक्रोसॉफ्ट इज टॉकिंग मोर अबाउट वर्चुअल रियलिटी, तो ये सब बात कर रहे हैं। उनका कुछ ये भी है, हॉलोलेंस भी है जो लोग ने US आर्मी को बेचा है। हॉलोलेंस, होलोग्राम सुना है मैंने? हाँ, तो ये हॉलोलेंस है। उसमें मेरे को लगता है कुछ कैमरास में क्या क्या हो रहा है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इट इज लाइक अ कंप्यूटर ऑन योर दिस गॉगल्स एंड गिविंग यू कांस्टेंट डेटा। तो ऐसा हो सकता है कि तुमने कुछ ड्रोन भेजा है किधर, छोटा छोटा ड्रोन्स भी हो सकता है ना, ड्रोन भेजा है एनिमी कैंप में या रूम के अंदर, वो देख जो भी दिखाई उधर से दिखाई दे रहा है वो देखो हॉलोलेंस में दिखाई देगा, वो इमेज प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ धूम 3 में कौन है? धूम 3 अभी आया है कि आके चला गया? आके चले गया सर। हाँ, अच्छा। कर्जा हो सकता है, मेरे को पता नहीं। US का तू कर्जा देख, US हमसे ज्यादा डेट में है। तो हाँ, नो देयर सिस्टम वर्क्स डिफरेंटली। वो पूरा थोड़ा ये इंटरेस्टेड यू ऑल शुड नो देन हाउ इट इज कंट्रोल्ड US गवर्नमेंट। नहीं, पहले कर्जा हुआ कैसे वो देख लो, और हमको इतना कम कर्जा है ये क्यों हुआ, उसमें US में और इंडिया में क्या फर्क है वो बाद में का टॉपिक है। जो भी है हमारा कम है उनसे। यस, चल अभी टॉपिक चेंज करते हैं। चलो, so 3 key advantages of PaaS are
reducing cost, automatic upgrades. So C for cost, U for upgrade, IS for integrated solution. Okay. So advantage क्या है? Cost. मतलब QUIS, CUIS. C for cost, U for upgrades and I for integrated solution. So cost में क्या एडवांटेज है कि वो कॉस्ट रिड्यूस होता है प्लेटफॉर्म्स, वो तो ऑटोमेटिक एडवांटेज हो गया. सेकेंड इज यू डोंट हैव टू अपग्रेड. अगर तुम अपना मशीन खुद इंस्टॉल करते हो सब कुछ, तो उस पर कुछ भी नया सॉफ्टवेयर आए तो वो जिम्मेदारी आपका बनता है अपग्रेड करने का. लेकिन अगर वो क्लाउड पे, वो क्लाउड ऑटोमेटिक अपग्रेड करके देगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है. थर्ड एडवांटेज है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन. जैसे एक लैम्प स्टैक होता है, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डाल के तैयार मिलेगा आपको, सिर्फ कोड डालना है, बस रन करना है. इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन. So reducing cost indirectly from the financial standpoint, although IS solution allows shifting the capital cost into operational cost through outsourcing, PaaS solution can cut the cost across development, deployment and management of application. इसमें दो cost के बारे में बताया, capital cost and operational cost. क्या है उसका फर्क? कैपिटल कॉस्ट. मनोज क्या है? अभी उसने तुमने बोला ना इतना कर्जा है, कैपिटल कॉस्ट क्या है? अच्छा, इधर दूसरा कॉस्ट क्या लिखा है? ऑपरेशनल कॉस्ट. ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है? ये हाँ, ऑपरेशनल कॉस्ट. ये अभी अकाउंटिंग में आ गया, अब अभी कंप्यूटर में नहीं है. हाँ, ये कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, फर्क क्या है? कभी सुना नहीं? नहीं, क्या सुना है कि नहीं सुना है? सुना है. अच्छा, तो अभी मैं एक हाँ हाँ उसका जो कॉस्ट है, हाँ कैपिटल कॉस्ट कहते हैं. ओके. और ऑपरेशन कॉस्ट मींस उसमें अभी जो चेंजेस करने हैं हाँ या फिर और वो कुछ करना है, हाँ. जो ऑपरेशंस होने वाले हैं उसको ऑपरेशन कॉस्ट कहते हैं. चलो, अच्छे भाई, वेरी क्लोज, वेरी गुड. तो बेसिकली आपको कुछ एक प्रोड्यूस करना है. सोचो सामान, इडली मेकर, इडली बनाना है, तो पहले आप मशीन लेके आओगे, कैपिटल कॉस्ट. फिर उसको वो चलेगा, फिर एक दिन बंद पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है. हाँ, चलाने वाले का कॉस्ट रहेगा. हाँ, तो कोई तो ऑपरेट करने वाला तो रहना चाहिए. तो इसको बोलता है कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. अभी क्लाउड का फायदा किधर है? उसमें कैपिटल कॉस्ट है क्या? हाँ, क्यों? हाँ, क्लाउड में मशीन है, मैं तो रेंट दे रहा हूँ. मेरा कॉस्ट क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट है ज्यादा से ज्यादा. मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला है. नहीं, ऑपरेशनल कॉस्ट में मतलब ये तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ये डेवलपमेंट कॉस्ट, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट या मैनेजमेंट कॉस्ट हो सकता है, जो तुमने एप्लीकेशन डाला है उधर. Automatic risk-free upgrades. It helps management reduce the risk of ever-changing technologies by offloading the cost of upgrading the technology to the PaaS provider. इसका मतलब cost of upgrading, offloading the cost. Offloading का मतलब क्या हो गया? नहीं, offloading. ऑफलोडिंग मीन्स इंग्लिश वर्ड है इसमें. ऑफलोडिंग मतलब किसी दूसरे पे थोप दिया तुमने. क्या है ऑफलोडिंग? किसी दूसरे पे थोप दिया. तुम्हारा काम था, तुमने किसी दूसरे पे थोप दिया, उसको बोलते हैं ऑफलोडिंग. आई ऑफलोडेड माई वर्क ऑन अनिल, ऐसा बोल सकते हो. सो इन दिस केस तुम
इन ये तो इसमें क्या ऑफलोड कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी। इसमें जो अपग्रेड करने का जो कॉस्ट लगता है वो किस पे आपने ऑफलोड कर दिया है? पास प्रोवाइडर पे। पास प्रोवाइडर इज योर क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS। तो ये कॉस्ट मेरे पर नहीं रहेगा अपग्रेड करने का। कुछ भी सॉफ्टवेयर का अपग्रेड रहेगा कौन संभालेगा? वो किस पे थोप दिया आपने? क्लाउड प्रोवाइडर पे। हाँ, तो ये इसका एडवांटेज है। Okay, sir. It helps management reduce the risk of ever-changing technology by offloading the cost of upgrading the technology to the past product. हाँ। Product पे थोप दे रहा है। हाँ, मेरा रिस्क चला गया ना फिर कि कल जावा 12 पॉइंट आया, 13 पॉइंट आया, मेरे को क्या करने का है? वो लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं करने का, वो पास प्रोवाइडर देखेगा। ये बड़ा एडवांटेज है। अभी जावा 12 ओरेकल बेचने वाला है, फ्री में नहीं देने वाला है, पता है आपको? हाँ, तो ये सब चीजों के लिए क्लाउड काम में आता है। फिर सर क्वेश्चन आ रहा है, जावा 2.0 यूज कर रहे हो तो जावा 12.0 मतलब आ गया तो आप उस पे नहीं जाओगे कि जाओगे? मेरे को पैसा देना है तो जाऊंगा मैं। फीचर यूज कराएगा उसमें ऐसे सब फीचर्स रहेंगे जो अच्छा फीचर्स रहेंगे, लेकिन मेरा काम का नहीं है। अभी मैं क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं जावा 8 से चल जाएगा मेरा, मेरे को क्यों चाहिए जावा 12? और मेरा क्लाइंट ने बोला है मेरे को पैसा नहीं देने का है, और किसी को भी जो भी मेरा कस्टमर है उसको भी पैसा नहीं देने का है। तो मैंने बोला जावा 8 के साथ जाएंगे, लेकिन अपग्रेड नहीं मिलेगा मेरे को, अपग्रेड का कॉस्ट है। तो ये सब आपको जो प्रोडक्ट बेचता है या फ्री में देता है उनका आपका लाइसेंसिंग टर्म आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अभी ओरेकल का ऐसा है कि आप लोग कमर्शियल में करते हो, फ्री भी है, तो लाइसेंस एक पूछना चाहिए एक बार। Quick integrated solutions on hosted platform. The PaaS approach, when bundled with underlying IaaS solution, helps even small startup companies quickly offer customers integrated solution on a hosted platform at a very minimal cost. These opportunities make the PaaS offering a viable solution option that targets different market segments. तो जो छोटा स्टार्टअप रहेगा उसके लिए ऐसा तुम पैकेज तैयार करके दोगे, एक लैम्प स्टैक, वेब सर्वर, रन टाइम एनवायरनमेंट, लाइसेंस फ्री, तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना। फिर पूरा सॉल्यूशन मिल गया प्लेटफॉर्म का, उसको कुछ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लो रहेगा। छोटे कंपनी के पास छोटा पैसा नहीं रहता ना ज्यादातर। डिसएडवांटेज ऑफ पास, वेंडर लॉक इन। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट इज पास, ये सब आपको बताना पड़ेगा अगर पास के बारे में पूछा गया तो। तो डिसएडवांटेजेस में VL CCM याद रखना पड़ेगा। VL फॉर वेंडर लॉक इन, CCM फॉर क्लाउड टू अनदर क्लाउड माइग्रेशन। तो ये डिसएडवांटेज क्या है इसमें? वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ लेवरेजिंग पास सॉल्यूशन फॉर इंप्लीमेंटिंग द एप्लीकेशन इज वेंडर लॉक इन। द कस्टमर इज स्टक विद द वेंडर्स विच द क्लाउड प्रोवाइड्स। इसका मतलब क्या हो गया? वेंडर लॉक इन। लॉक इन का मतलब क्या हो गया? नहीं, ये अमेजोन के अंदर के बात कर रहे हैं वो वेंडर। अभी प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। प्लेटफॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट के होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट जावा, .NET, पाइथन। अगर AWS ने बोला मैं पाइथन का रन टाइम देगा और जावा का रन टाइम देगा, तो तू वो वेंडर के साथ फंस गया है ना। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज। तुमने देखा रहेगा ना कौन बना करोड़पति, लॉक कर दूं क्या, लॉक कर दूं क्या, अमिताभ बोलता है ना। तो इसमें वेंडर लॉक हो गया हमारे साथ, जुड़ गया वो। या तो जावा यूज करो या तो पाइथन यूज करो। मेरे को .NET यूज करने का तो वो बोल देगा नहीं कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जाओ। तो मैं तो फंस गया ना बीच में। फिर अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का बंदा रहेगा तो। हाँ, वेंडर का मतलब क्या हो गया? हाँ बराबर। हाँ, एक मिनट। MSc सेमिनार रूम, दिस यही सेमिनार रूम है ना? हाँ, 3rd फ्लोर, दिस इज कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट।
एनालिटिक्स एनालिटिक्स डिपार्टमेंट एम एस सी इसमें थर्ड फ्लोर है क्या? एनालिटिक्स कोर्स मे बी जस्ट ट्राई ऑन द थर्ड फ्लोर. थैंक यू. काय बोललं तरी असं खेचतात मागे ट्राय करतो काय करू आता सांगायला चलो अभी इस पे बुक स्टोरी खोलेगा सर आम्ही एक छोटा सा बुक स्टोर है. हम्म. तो उसमें 4 किस्म के बुक्स मिलते हैं. हम्म. लेकिन आपको को चाहिए 500 तो 500 उधर नहीं मिलेगा. अब लॉक हो गई उसमें से आपने को यूज करना है. हाँ तो लॉक नहीं है. हाँ वेंडर लॉक इन में सॉफ्टवेयर लॉक हो जाता है. जो सॉफ्टवेयर वेंडर बेचता है या दिया जाता है क्लाउड प्रोवाइडर बोलेगा AWS की पाइथन और जावा यूज हो रहा है. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा तो वो बोलेगा .NET देगा, जावा नहीं देगा. ये फंस जा रहा है ना हम लोग. वो कभी भी मतलब भाग सकता है. जब तुम क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाते हो तो ये सब भी सोचना पड़ता है तुमको. ये डिसएडवांटेज हो गया है इसका पास का. सर वेंडर लॉक में अपने सॉफ्टवेयर में रहते हैं. हाँ अभी जो एनाकोंडा है हाँ उसमें एस्केप यूज नहीं कर सकते. क्या? एस्केप हाँ लोड नहीं कर सकते ना. यूज नहीं कर सकता है. तो उधर आपने को दूसरी तरफ से यूज करना पड़ेगा. हो सकता है, पता नहीं. बट आपको मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया. लेकिन हाँ समझ आएगा. चलो गुड. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड माइग्रेशन इज डिफिकल्ट. Even though the platform-based approach strongly simplifies the development and deployment cycle of application, it poses the risk of making this application completely dependent on provider. Force.com is proprietary and difficult to move to another environment. Google App Engine and Microsoft Azure rely on industry standard runtimes but utilize private data storage facilities and computing infrastructure. Other cloud providers such as Tapestry Cloud, IQ Platform, Heroku, and Engine Yard completely rely on open standard, thus making the migration of application easier. ये लास्ट पार्ट में क्या बात हो रहा है? मतलब वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड मतलब क्या हो गया? वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड मतलब कभी कल को मैंने अभी आज AWS के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन डाल दिया मैंने, अभी मुझे शिफ्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट पे, मुश्किल होगा ना मुझे. ये डिसएडवांटेज हो गया पास का. अगर ऐसा मुश्किल, हाँ नहीं, अभी वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा. अभी जा कैसे सकते हैं लोग, रास्ता ढूंढते हैं. अभी ये लास्ट चीज क्या बोल रहा है? अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स like Tapestry Cloud, IQ Platform, Heroku, Engine Yard completely rely on what standards? ओपन स्टँडर्ड्स. Thus making migration of application easier. आप ऐसा प्लेटफॉर्म चुनो ही मत जिधर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. अभी जो मेरे क्लाइंट है उसने यही बोला ओपन स्टैंडर्ड. वो क्विक बुक्स पूरा मार्केट में एक एक आदमी को वो लोग $25 मांग रहे हैं. अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में 4 लोग क्विक बुक्स यूज कर रहे हैं तो सबके मशीन पे वो डालेगा $25 हर एक महीना देना पड़ रहा है उनको. क्विक बुक्स एक प्रोप्राइटरी हो गया. अभी कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है, कोई यूज करेगा तो फंस जाता है, एक वेंडर लॉक इन हो जाता है. तो इसीलिए ये कस्टमर मेरे पास आया, बोला तू सिंपल बना लेकिन ऐसा बना कि ओपन स्टैंडर्ड है और पैसा भी सस्ता गिरे, हमको भी पैसा नहीं लगे और हम लोग बेचेगा भी तो सस्ते में बेच पाए. कुछ तो कर लेकिन सिंपल कर. तो इसीलिए मैं ये सब देख रहा है. Node.js, MongoDB, Java 8, Apache. नहीं क्यों मैं चूज कर रहा हूँ ये सोचो, फ्री है इसीलिए. अगर आप क्लाउड पे जाते हो तो आपको ये सब, अगर आप क्लाउड पे जाते हो तो ये सुनो अभी, तो क्लाउड पे ये सब चीज देखना पड़ेगा आपको. हीरोकू, इंजीन यार्ड, क्लाउड IQ प्लेटफॉर्म, कि क्या मेरा एप्लीकेशन ये प्लेटफॉर्म पे चल सकता तो मैं इस पे ही चलाएगा. ओके पास इज ऑफर्ड इन 3 स्टाइल्स. पहला स्टाइल क्या है इसका? ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या हो गया? सर एक ब्राउजर के ऊपर वो लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं.
हाँ, पूरा सॉफ्टवेयर तेरा ब्राउजर से ही बन रहा है. एड दिस कॉम्बो बॉक्स ड्रैग ड्रॉप ब्राउजर पे ही चल रहा है. Wix.com sir, Wix.com. wix.com वेरी गुड. Wix. Tina, T1 Wix नाही. जो आहे X ना, शंभर आहे. स्केलेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इसका मतलब पास टू. मनोज बताएगा सर. स्केलेबल का मतलब क्या होता है? स्केलेबल का मतलब एक ज्यादा यूज करना कम. हाँ, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का तो जरूरत पड़ेगा ना. तो ये पास टू का फ्लेवर है कि तुमको मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ. एक प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं ब्राउजर पे सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, एक पास हो गया. दूसरा हो गया कि मैं एक जावा एप्लीकेशन डाल रहा हूँ लेकिन स्केलेबल जावा सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको. यू कैन स्केल इट. ये मेरा सॉफ्टवेयर का कमाल रहेगा क्योंकि जावा इज नॉट स्केलेबल बाय डिफॉल्ट. उसको स्केलेबल बनाना पड़ता है, तो किसी को तो वो सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा ना. ओके, तो सर एक एप्लीकेशन भी ले सकते हैं. कोई भी ले सकता है. एपीके आता है तो उसका कितना भी अपन. हाँ, जो भी करने गया है तू कुछ भी कर सकता है. सॉफ्टवेयर को मल्टीप्लाई कर सकता है, छोटा कर सकता है, डिलीट कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, मोबाइल पे डेस्कटॉप पे चला सकता है, वॉच पे आ सकता है. अभी तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी आ गया है. मतलब ब्रेन से कंप्यूटर अटैच है, तू जो सोचता है उधर वो कंप्यूटर में आ जाता है. सोच देखो, कौन बोला? क्या समझ सुना नहीं मैंने. लीजिए, सोच अभी समझो मैं अभी तो बाथरूम में हूँ. हाँ, अगर आकाश वो भी दिखाएगा ये उधर. नहीं मैं बोल रहा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है. ऐसा कुछ चीज नहीं है तू नहीं कर सकता है. तू दिमाग लगाएगा ना कुछ भी. अभी प्लेन तो उड़ा, प्लेन वाज नॉट देयर ना. अभी तो उड़ प्लेन पे उड़ता है ना, लेकिन एक दिन तू खुद उड़ सकता है. उधर ये बात बराबर है. हाँ, तो वी आर वेरी पावरफुल दैट वे. और सॉफ्टवेयर तो हमारे हाथ में डेटा है. वो मैं डेटा सॉफ्टवेयर को कुछ भी देखो मतलब कुछ भी मैं दिखा सकता है. डेटा को किधर से भी किधर शिफ्ट कर सकता है. अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है तो मैं डेटा लेके तेरा दिमाग में डाल सकता है कि तू सपना देखेगा, वो सपना देखेगा जो मैं तेरे दिमाग में डालेगा. बट सर ये पॉसिबल नहीं है. आपके सपने में क्या चल रहा है, ये ब्रेन में क्या चल रहा है सपने में, ये पता चल रहा है. अभी तो पूरा इनपुट एंड आउटपुट दोनों हो जाएगा. तेरा ब्रेन से स्टडी, आप वो स्टडी करो. आप इसके लिए आपको टेस्ला इसको टेक्नोलॉजी बहुत आगे देखेगी. चालू किया है. इलॉन मार्क जुकरबर्ग, ये लोग ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है ये सब प्रोजेक्ट्स में. इनका प्रोजेक्ट्स क्या क्या है देख. तो इलॉन मास्क का एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है. बना रहा कौन? ये मैं बोला ना अभी दो नाम. ये कंपनी पैसा डाल रही है, बना रहा कौन? अरे डेवलपर्स. आता तो उनका ब्रिज का बहुत मात्रा रहेगा भाई. नहीं सर, वो नाम तो आएगा ना उसका. साइंटिस्ट रहता है इसमें, इंजीनियर्स रहता है, डॉक्टर्स रहता है. मैंने अभी वो प्रोजेक्ट बोला ह्यूमन सेल एटलास, वो 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है. $4 बिलियन. कितना पैसा हो गया वो. ब्रेन पे कंट्रोल कैसा वो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं. अभी वो स्टडी हो रहा है. मतलब ऐसा नहीं कि हो गया है, बट उनको ऐसा नहीं सक्सेस भी नहीं हुआ है. सर 11 में था ना तब मैंने न्यूज पढ़ा था मुंबई सॉफ्टवेयर पे कि दिमाग पढ़ने वाली मशीन आ रही है. बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा आप नहीं सोच. ब्रेन इज ऑल्सो लाइक अ कंप्यूटर. ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर. ब्रेन चलता कैसा है तुम्हारा? सिग्नल से चलता है. तुमको सिर्फ सिग्नल ट्रैप करना है, इंटरप्रेट करना है. जिस दिन आपको समझ में आ गया है सिग्नल का मतलब क्या है, जैसा रेड सिग्नल देगा तो आपको पता है कि ये स्टॉप है, वैसा ब्रेन चलता है हमारा. हाँ सर, सिग्नल देखते हो सर, लाल रहेगा तो दूर से इंसान गाड़ी स्पीड कम करेगा. नहीं सर ब्रेन का हमें अभी तुमको लगता है तुम खुद सपना देख रहे हो. ऐसा हो सकता है कोई और सपना डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में. तुमको कैसे पता है? होगा सर ऐसे. मतलब हो सकता है क्या आगे. ब्रेन एक कंप्यूटर है. तुम कंप्यूटर कैसे हमको तो ये करना पॉसिबल नहीं है सर. नहीं पॉसिबल है. क्यों नहीं? सर उसको मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है सर किसी के पास. वो आपको लग रहा है माउस पे इतना कंट्रोल हो रहा है. हाँ, तो माउस का ब्रेन हमारा. हाँ, उन देर एक्सपेरिमेंट्स माउस पे हो रहा है ना अभी आजकल.
मैं बोल रहा हूँ कुछ भी आपका एक क्लोन बन सकता है, हाँ ह्यूमन क्लोनिंग। आप मर भी जाओगे, मैं आप ही के इस जैसे बना सकता हूँ, और फिर मैं आपको सुपरमैन बना सकता हूँ आपका जीन एडिट करके। क्या नहीं कर सकते हो? अभी यही क्वेश्चन रहना चाहिए, अगर तुमको टेक्नोलॉजी में काम करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी में काम करना है, ये करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन लेना है। अमेरिका में तो डायनासोर भी बनाए थे ना, मार दिया बाद में। हाँ, अमेरिका में डायनासोर बनाए गए, जुरासिक पार्क में उसको मार दिया। पता नहीं। सर जुरासिक पार्क में क्या है वो? तो मच्छर के खून से डायनासोर बनाते हैं ना। कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, अगर आपने क्रिप्टो स्ट्रीम एक नाम का एक अमेरिका का चैनल है, उसमें सब दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में से एक ने डायनासोर भी कैसा बना है, जो आई थी ना बारीक से ऐसे, कीड़े मकोड़े से उड़ कर आते, जीन्स उसके बढ़ते गए। हाँ पॉसिबल है, हाँ पूरा जीन्स पे है ना, बस जीन पे कंट्रोल आया, तुम कुछ भी बना सकते हो। जीन को सुपरमैन भी बना सकते हो, डायनासोर बनाए सर? बना सकता है, मैं ये नहीं बोल, नहीं वो पता नहीं, लेकिन आज तक लेकिन एक ही मशीन नहीं बन पाई है, वो बोलते खून कैसे जनरेट करते हैं, वो भी वो भी हो रहा है अभी। उसमें काम चालू है। हाँ काम चालू है, लेकिन आपको लीवर मिल जाएगा। एक ऑटो में ये आर्टिफिशियल खून बन रहा है अभी, ऑलमोस्ट हो गया है। अभी क्वेश्चन ये नहीं क्या नहीं हो सकता है, अभी क्वेश्चन ये है कि क्या हम चाहते हैं कि ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। एथिकल क्वेश्चन ज्यादा है। सो पार्ट 3 इज व्हाट टाइप? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन? एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी साइट्स, लाइक ग्रिड, क्लस्टर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में आता है। तो इसके कौन से सॉफ्टवेयर है? पास 1 क्या होता है मैंने बोला? सॉफ्टवेयर, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल क्या है? force.com एंड लॉन्ग जंप। सेकेंड क्या था? स्केलेबल पास सॉफ्टवेयर, राइट? ये कौन से सॉफ्टवेयर है इसमें? गूगल ऐप इंजन, ऐप स्केल, हीरोको, इंजन यार्ड। ये देखो इसका कितना एडवांटेज है हीरोको को, इंजन यार्ड का। स्केलेबिलिटी को लेके ये ज्यादा यूज हो रहा है। जॉइंट, स्मार्ट एंड गीगा स्पेस। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए? एज्योर, डेटा सिनैप्स, क्लाउड IQ, माइक्रोसॉफ्ट अनेका, एप्रिएंडा, सास ग्रिड, गीगा स्पेसिस, डेटा ग्रिड। ये काफी सारे नाम आपने सुना है पहले। तो बेसिकली ये सब सॉफ्टवेयर आपके लिस्ट में रहना चाहिए कि हाँ, अच्छा सुना है। ओके, तो बेसिकली आपको किसी को सॉल्यूशन देना है तो ये लिस्ट में रहना चाहिए आपका। ये लिस्ट में से एक टिक मार के आप दे सकते हो किसी को। तीनों में से सर? नहीं, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है अभी किया है ना, ये तीन टाइप का सॉफ्टवेयर है ना पास। एक ब्राउजर पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, एक स्केलेबल में मास्टरी है उसका, तीसरे का डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, जैसे ग्रिड है, क्लस्टर है, हमने पढ़ा था ना कल। तो ये सब पास 1 का ये सब सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल force.com, मतलब वेबसाइट ब्राउजर पे आप अपना सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हो। salesforce.com इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। वो force.com को लेके बनाया गया है प्रोडक्ट। नहीं, फ्री नहीं है। तो तो ये तो मैं अभी डिटेल में नहीं जाना हूँ इसका, और ऑलरेडी थोड़ा डिटेल में गए हम लोग। सर गूगल ऐप इंजन बना होने का? गूगल मतलब क्या बताने का, मैं समझा नहीं, मतलब एग्जाम्पल। हाँ एग्जाम्पल सर, गूगल ऐप। वो क्लाउड प्रोवाइडर है ना, गूगल क्लाउड का पार्ट है वो। इधर क्या लिखा है? गूगल ऐप इंजन ना, कौन सा टाइप है? पास 2। हाँ, तो पास 2 का मतलब क्या हो गया? स्केलेबल है, तो वही हो गया वो। इट्स अ स्केलेबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कि तुम कोड डालोगे वो स्केल हो जाएगा। गूगल ऐप इंजन का वो मास्टरी है। वो कौन प्रोवाइड करता है? गूगल क्लाउड पे मिल जाएगा आपको वो।
गूगल जब चालू हुआ इससे चालू हुआ, ये क्लाउड ऐप इंजन, ये सबसे उसका पहला ये था प्रोडक्ट।